Hello students, I am your science teacher Smita Zambre and today we are going to start our 10th lesson, Motion and Measurements of Distance. In this lesson, we are going to learn the modes of transport, non-standard units of measurements, standard units of measurements, rectilinear motion, circular motion and periodic motion. So students, now let's move towards the lesson. So students, now let's move towards the first point of this lesson, mode of transport. So students, as we know that to go from one place to another place, we need the means of transport. So there are three modes of transport. So we can travel through the land, water and air. For example, the land transport include bullock cart, bicycle, car, bus and many more examples you can add in it. Also, in a water transport, we can see the boat and ship that are the examples of water transport. And after that, for air transport, we include the aeroplanes, helicopters and the hot air balloons. So students, these are the means of transport which we use to go from one place to another, or we can say that these means of transport help us to measure, or we can say that we can go or we can cut the distance from one place to another. Let's learn about the non-standard units of measurements. As we know that in our day-to-day life we measure so many things, but in the non-standard forms, मतलब उसका कुछ standard form नहीं है, ये हमने just generally हमारे convenient के हिसाब से जो है उसको बनाया है. For example, we give the measurements like foot length, है ना, हमारे foot की length के जितना, या फिर hand span, हमारे हाथों की length के जितना, या फिर अगर हमारे फिंगर की विड्थ जितनी होती है उतना चौड़ा अगर हमें बोलना है तो हम बोलते हैं विड्थ ऑफ अ फिंगर. और अगर कितना डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे कि कुछ नहीं, बस एक स्टेप जितना डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप. और क्यूबिट यानी हम बोलेंगे जो हमारा एल्बो से लेकर हमारे फिंगर तक का जितना डिस्टेंस होता है बस उतना ही लंबा है. सो दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. जैसे कि अभी हमने नॉन स्टैंडर्ड देखे, मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वो हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए हैं. बट द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, अभी जो फिलहाल हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. उसे SI कहा जाता है. एंड द SI है ना, SI मीन्स द स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना. तो SI के हिसाब से यूनिट जो होता है लेंथ का, है ना, वो उसे हम क्या बोलते हैं, यस मीटर, उसे हम कहते हैं मीटर. उसे जो है वो स्मॉल m के इसमें दिखाते हैं, ओके, लेटर में. एंड अ लार्जर यूनिट है ना, अभी मीटर से लार्जर यूनिट जो आएगा वो आएगा किलोमीटर. एंड जैसे कि अगर हम देखते हैं उनका रिलेशनशिप अगर हमें देखना है बिटवीन द वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू द 1000 meters. Okay, now in that sense 1 meter is equal to 100 centimeters and 1 centimeter is equal to the 10 millimeters. इस तरह से हम उसका रिलेशनशिप जो है वो देख सकते हैं. सो अगर आप देखते हो ये जो यूनिट्स होते हैं, इन यूनिट्स को हम कैसे जो है उसे नाप सकते हैं या फिर उसे हम कैसे जो है वो मेजर कर सकते हैं. सो देयर आर सम ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ एंड these are the टेप का इस्तेमाल करते हैं हम. मीटर स्केल होती है या फिर मीटर रॉड का इस्तेमाल भी जो है हम लेंथ मेजर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं. बट वी हैव टू टेकन केयर ऑफ सम पॉइंट्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ. हमें कुछ बातों का जो है वो क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है व्हेन वी हैव टू मेजर द लेंथ. सो व्हाट आर दैट पॉइंट्स? तो वी शुड कीप द स्केल, okay, in the contact with the object to the measure in the lengthwise. हमें जो स्केल है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें काउंट करना है ना, उसके कांटेक्ट में हमें रखनी पड़ती है.
and our eye should be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. अगर हमें appropriate उसका distance या फिर उसके length अगर count करनी है, so we should have our eyes on that object. अगर हम इधर उधर देख रहे हैं and we are taken that the measurement, so it will be not the correct. So this point we should have to be taken care. Next we can say that an object is said to be motion, है ना. अगर हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट है ना, और वो मोशन में है, ओके, एंड दैट इफ इट इज चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. A object is said to be in motion if it is changes its position from one point to another with respect to the time. मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसकी जगह अगर चेंज होती है, तो उसे हम कहेंगे that object is in the motion. So students, in the next point we are going to learn about the different types of motions. Okay, so let's move towards the next point, motions. So students, in this point we are going to learn about the different types of motion. In that first we will learn about the rectilinear motion. From this name you can conclude what is the meaning of rectilinear motion. The motion or the movement of an object along in a straight line. कोई भी मूवमेंट जो स्ट्रेट लाइन में हो रही है उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट सोल्जर्स मार्चिंग ऑन अ रोड, है ना. जब सोल्जर्स की परेड होती है, देखो वो सीधे लाइन में चलते हैं, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज द सर्कुलर मोशन. मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, है ना. सीलिंग फैन देखो अभी हमारे घर में जो होता है, दैट मूविंग ब्लेड्स, उसके जो ब्लेड्स होते हैं मूविंग, उससे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. एंड द लास्ट type of motion is the periodic motion. Now what is mean by periodic motion? Motion that repeats itself at the regular intervals of time. मतलब टाइम है वहाँ पर, है ना, एक टाइम के फिक्स टाइम के बाद वहाँ पे वो मोशन होती है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, है ना, झूले पे बैठा हुआ बच्चा देखो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आगे पीछे होता है, तो उससे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ different types of motions we saw. So students, a specific quantity regarded as a standard with which other quantities are compared is known as a unit. मतलब जैसे कि देखो लेंथ अगर हमें काउंट करनी है तो उसके लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर्स जैसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना. तो कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, है ना, हम जो कुछ वहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी लेते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट. ओके, सो इन दिस वे वी फिनिश्ड आवर 10th lesson. So students, please watch the video carefully and read the lesson carefully. Thank you. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.